Hi guys, welcome back my channel. Today I am here at Gonda bus stop. Actually I have to pick up something, so that's why I am here. I am waiting my bus, and few of the things are coming from the Delhi. Yeah, I was waiting to the bus, so I was thinking about what should I do. So I made a plan to record my video. I am going to teach some special structures, Hindi to English. That would be more better to understand about the structure. So first I am going to tell you the structures regarding have to, that means we can use have to in order to take something, in order to go something. That means we have to do something my next work, so that in that situation I can use have to. As like if you want to say something regarding मुझे अभी बाज़ार जाना है, तो I have to go to market. That means you are going to do something your next work. So in this way you can utilize this time. Actually you are you are getting some noise from my side. I am not using any mic and anything, that's why you are getting some noise. But I will try to put everything very close. I am going to little bit outside, that would be more better. So now I am going to explore the things whatever in my area. As you can see the Patanjali Chikitsalaya store. I am going to zoom it. Building, as you can see. Inside of the store you can see some small packets and some small bottles inside the building, and the bottom side of the building you can see some Apple and Vivo, some shops of mobile shops, as you can see. Actually it's morning time, well there is no more shops open, so that's why. And this road is going to lead to the bus stop, and I am very close to the church. As you can see, I am going to show you. This is the church. Okay. This is the church. This is the gate of the church. You can see the symbol of the church. Two symbols available on the gate. Okay. And some of the trees inside the church. And I am going to show you church very close, from very close. So inside the church I don't know who is there. Is there anyone or not? I don't know exact. So I was telling about how to use can have to. So have to you can use when you have to do something very necessary. If you have to do very necessary action, so you have to use have to. And have to you can use with the singular. So singular you can use has to. जैसे उसे कहीं जाना है, he has to go. He has to go somewhere. अगर उसे स्कूल जाना है, he has to go to school. उसे मार्केट जाना है, he has to go to market. has to तभी यूज़ किया जाएगा जब हमारे लिए कोई काम वेरी फिक्स हो गया हो कि हमें करना ही है. मुझे आज पूरे दिन में कोई नेसेसरी काम करना है, तो वो मेरे लिए हैव टू है. जैसे मैं अभी रूम पे था, मुझे यहाँ आना था बस स्टॉप पे, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव टू गो टू बस स्टॉप, बिकॉज क्योंकि ये मेरे लिए नेसेसरी था. तो कोई भी प्लान जो तुम्हारा फिक्स हो जाता है कि मुझे ये करना है, तो करना है हिंदी में सिचुएशन निकल सकता है, करना है या जो भी हो, लेकिन उसका जो सिचुएशन है वो यही है, हैज़ टू एंड हैव टू. फॉर द सिंगुलर ही सी इट एंड नेम यू कैन यूज हैज़ टू. प्लूरल यू हैव टू यूज हैव टू. जैसे तुम्हें पढ़ना जाना है, यू हैव टू गो टू फॉर द स्टडी. एनीथिंग यू कैन ऐड वट एवर यू वांट टू ऐड. सो इन दिस वे यू कैन डू इट. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर सिचुएशन दैट वुड बी मोर बेटर टू अंडरस्टैंड. सिचुएशन में तुम्हें दे रहा हूँ शुड के लिए, मैं 3 सिचुएशन दे रहा हूँ. अगर मैं हैव टू की ही पहले बात कर लेता हूँ. मैं हैव टू में अगर पास्ट के लिए अगर बात करना हो, तो पास्ट में क्या यूज़ करेंगे? पास्ट में जाएगा हैड टू, और हैड टू सबके साथ में फिक्स है. हैड टू का मतलब ये हुआ कि आपको सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में हैड टू का ही यूज़ करना. जैसे मुझे बस स्टॉप जाना था, आई हैड टू गो टू बस स्टॉप. राहुल को स्कूल या मार्केट जाना था, तो राहुल हैड टू गो टू मार्केट. सो हैड टू का मतलब ये हुआ कि पास्ट में आपको कुछ करना ही था, वहाँ पर आप हैड टू का यूज़ करेंगे. और अगर फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में आप विल हैव टू का यूज़ करिए. जैसे एक मजबूरी होती है ना कि मुझे ये काम करना ही है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा या जाना ही पड़ेगा. तो ऐसे सिचुएशन आप कह सकते हो
I will have to go to market, I will have to go to school, I will have to go to temple। मतलब एक मजबूरी है, कंपल्सन है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप will have to का यूज़ करिए फ्यूचर के लिए। सो जैसे मुझे फ्यूचर में कुछ कहना हो, फ्यूचर में हमें क्या कहना है कि तुम्हें फ़ीस भरनी पड़ेगी, मतलब एक कंप्यूसल है कि तुम्हें फ़ीस भरनी ही पड़ेगी। यू विल हैव टू पे द फीस, यू विल हैव टू पे द फीस। तुम्हें एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। सो विल हैव टू का मतलब हुआ कि फ्यूचर में कोई कंपल्सन है। हैज़ और हैव टू का मतलब हुआ कि करंटली कुछ समय बाद मुझे कुछ करना है, तो यू या आई हैव टू डू समथिंग। और हैड टू का मतलब ये हुआ कि आपको पास्ट में थोड़ा बहुत सिचुएशन का यूज़ करना है। तो इन दिस वे यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग्स एंड यू विल ट्राई टू स्पीक ओवर इट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक मोर एंड मोर आफ्टर सम टाइम। मैं बात करूँगा सूट के बारे में। चलो सूट के मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना है अभी, या किसी को एडवाइस दे रहे हो, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो यू शुड स्पीक इंग्लिश। अगर तुम्हें कहना है पास्ट के लिए, अगर पास्ट में जा रहे हो कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। दैट मीन ये हुआ कि जैसे ही पास्ट में जाओगे शुड के साथ में हैव लगेगा और V3 लगेगा। जैसे तुम्हें मार्केट जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू द मार्केट, तो ये पास्ट के लिए बनेगा। एंड में किसी को एडवाइस देना हो कि इस समय तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, तो वहाँ पर शुड बी का यूज़ किया जाता है। जैसे यू शुड बी इन द स्कूल राइट नाउ, इस समय तुम्हें कोचिंग में होना चाहिए, यू शुड बी इन द कोचिंग राइट नाउ। अगर मुझे ये कहना हो कि तुम्हें बाज़ार में होना चाहिए, यू शुड बी इन द मार्केट राइट नाउ। मतलब इस समय अगर कोई सिचुएशन राइट नाउ की यूज़ करना हो तो उस समय शुड बी का यूज़ करेंगे। अगर तुम्हें ये बताना हो कि तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, तो वहाँ पर शुड हैव का यूज़ करिए। यू शुड हैव अ लैपटॉप, तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव अ मनी, मतलब कि तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। तो ये सिचुएशन होती है कुछ पोजीशन के लिए। अगर पोजीशन पास्ट की बात किया जाए, अगर पास्ट में ये कहना हो कि तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप। तुम्हारे पास पैसे, बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी, मतलब कि पास्ट में तुम्हारे पास ये चीज़ होनी चाहिए थी। I hope you enjoyed a lot today. I taught you so many good structures that you are going to use in your whole life. When I was going over there, then I have seen this kind of scenery. It's very breathtaking scenery, that's why I captured in my camera, and now I am going towards the Bhimrao Ambedkar. Now I am at Bhimrao Ambedkar Chauraha. It's very close to Karyalay Ziladhikari. So I am going to end this vlog. Have fun. Bye bye.